रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविड-19 के मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर कायम करदा 150 बिस्तरों वाले ICU वार्ड का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से महफूज रहने के लिए हर शहरी को कोविड-19 का टीका लेना होगा। उन्होंने कहा कि इन टीकों की खरीदी और रियासतों में तकसीम के लिए मरकज को आगे आना चाहिए। के.टी. रामाराव ने मरकज पर कोविड-19 के टीकों की खरीदी और उसे तमाम रियासतों तक पहुंचाने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ देसी टीकों पर इन्हिसार करना बेकार है, बल्कि हुकूमत को दूसरे ममालिक से टीके हासिल करते हुए उन्हें मुल्क की पूरी आबादी को लगवाना होगा। కొన్ని అనాలోచిత నిర్ణయాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే తీసుకుందో దానివల్ల ఈరోజు దేశంలో ఎప్పుడో పూర్తి కావాల్సిన వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ లేదా ఇప్పటికే చాలా వేగంగా ముందుకు పోవాల్సిన వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కొంత మందకొడిగా సాగుతూ ఉంది. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఏవైతే వ్యాక్సిన్లు ఇతర దేశాల్లో, ఉదాహరణకి నేను మీకు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను, ఆస్ట్రాజెనికా అని ఒక కంపెనీ ఉంది. భారతదేశంలో కోవిషీల్డ్ అనేది అయితే సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా తయారవుతూ ఉందో అది ఆస్ట్రాజెనికా అనే కంపెనీ తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్. దానికి ఇక్కడ కోవిషీల్డ్ అనే పేరుతో సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఆస్ట్రాజెనికా అనే వ్యాక్సిన్ ఈరోజు నాకున్న సమాచారం మేరకి ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో వాళ్ళు కొనుక్కున్నప్పటికీ నిరుపయోగంగా దాదాపు 50 కోట్ల డోసులు, ఒక అమెరికాలో 25 కోట్ల డోసులు, నార్వే, డెన్మార్క్, కెనడా లాంటి దేశాల్లో మరొక 25 కోట్ల డోసులు, అంటే దాదాపు 50 కోట్ల డోసులు ఇంకా అక్కడ నిరుపయోగంగా అందుబాటులో ఉంది. భారత ప్రభుత్వం కనుక చొరవ తీసుకొని ఆ డోసులు ఇక్కడ తెప్పిస్తే, ఆ వ్యాక్సిన్ ఇక్కడ తెప్పిస్తే మన వాళ్ళని వేగవంతంగా, మన భారతదేశాన్ని, మన ప్రజల్ని వేగవంతంగా వ్యాక్సిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అనాలోచిత నిర్ణయం నేను ఎందుకన్నానంటే ఊరికే అనలేదు. ఎప్పుడైతే మనం వ్యాక్సిన్ కొనుగోలు చేయాలో ఆ సమయంలో కొనలేదు, కొనకుండా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసినారు ఆనాడు. చేయడమే కాకుండా రెండవ తప్పు ఏం చేశారంటే వ్యాక్సిన్ సప్లై లేదని తెలుసు. వ్యాక్సిన్ దేశంలో 132 కోట్ల మందికి అంటే 2 డోసుల చొప్పున 264 కోట్ల డోసులు కావాలి. కానీ 264 కోట్ల డోసులు కాదు కదా, అందులో పావలా కూడా లేదని తెలుసు. అయినప్పటికీ ఎందుకు ఏం ఆలోచించారో, ఎట్లా ఆలోచిస్తారో తెలియదు, కానీ 18 నుంచి 44 ఏళ్ళ వరకు కూడా ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ప్రకటన చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. ఈ రకమైన అనాలోచిత విధానాల వల్ల ఈరోజు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆలోచించి వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరు మన సమాజంలో, వల్నరబుల్ అంటే ఎవరైతే ఈ వ్యాధి బారిన పడేదానిలో ఎక్కువ అవకాశం ఎవరికి ఉంటుంది, ఏ రకమైన వారికి ఉంటుందని ఆలోచించి మొదలు 45 ఏళ్ళు పైబడి ఉన్న వారందరినీ కూడా వ్యాక్సినేట్ చేసే ప్రయత్న భాగంలో ఇప్పటికే చాలా ముందుకు పోయినాం. रियासत के बरतरफशुदा वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने जुमे को रियासती असम्बली और टीआरएस पार्टी के इब्तदाई रुकने से इस्तीफा दे दिया। शामिरपेट में अपनी रिहायशगाह में एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने टीआरएस से अपनी 19 साल वाबस्तगी और पार्टी छोड़ने की वजूहत की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स के लिए माजी में भी असम्बली की रुकने से कई बार मुस्तफी हुए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता को निजामाबाद में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि उन्हें रातों रात काबीना से बरतरफ किया गया। अराज़ी के मामले में नामालूम अफराद की शिकायत पर कार्रवाई से कबल चीफ मिनिस्टर को उनके मौक़िफ़ के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। सियासी हलकों में ईटला राजेंद्र के असम्बली और पार्टी से मुस्तफी हो जाने के बारे में कई दिन से पेशन गोइयाँ की जा रही थी। वो हुजूरनगर से असम्बली के लिए 2 मरतबा मुंतखब भी हो चुके हैं। कबल दिल्ली में साबिक वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने जो पीर को साबिक MP विवेक और साबिक असम्बली E रविंद्र रेड्डी के साथ दारुल हुकूमत पहुंचे थे, बीजेपी के कारगुज़ार सदर JP नड्डा से मुलाकात की। इस तरह उनकी बीजेपी में अब शमूलियत यकीनी मालूम होती है। JP नड्डा से मुलाकात के मौके पर बीजेपी के इंचार्ज सेक्रेटरी तरुण चुग और रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय भी मौजूद थे। అంతకుముందు గ్రామాలకు మంత్రి పోతే ఇట్లాంటి సమస్యలను దృష్టికి వస్తే అప్పటికప్పుడు MRO గారు చెప్పి, అప్పటికప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారు చెప్పి పెన్షన్ ఇప్పించేటువంటి సిస్టమ్ ఉండేది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేను చెప్పిస్తాను తప్ప ఇప్పిస్తాను మాత్రం చెప్పలేదు. బియ్యం కార్డులు కుటుంబాలు ఏర్పడతా ఉంటాయి, పెళ్లి అయితే కొత్త సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాయి. 2 సంవత్సరాల నుంచి బియ్యం కార్డు ఇవ్వలేదు. మీ అన్న అరే బియ్యం కార్డు 2 సంవత్సరాలు ఇస్తలేరు, ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అని చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి ఈ బియ్యం కార్డు ఇప్పిస్తాను చెప్పిన నేను, చంద్రబాబు సభలో చెప్పిన నేను, ఇది కూడా చెప్పిన నేను. ఏమని, అరే ఇవ్వడే కత్తి
ఏమన్నది? మీకు వడ్ల కొనుగోలు సెంటర్లు నేను ఎంత మంచిగా చెప్పినా సభల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ సాధించాలంటే గ్రామాలు బాగుపడకుండా సాధ్యం కాదు. గ్రామాలలో నివసించే ప్రజలు కులంతో సంబంధం లేకుండా, మతంతో సంబంధం లేకుండా భూతాలను నమ్ముకొని బతుకుతారు వాళ్ళు. మనం రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పింది, కరెంటు సమస్య పరిష్కారమైంది, నీళ్ల సమస్య పరిష్కారమైంది, ఇంకా పరిష్కారం కావాల్సింది చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయని చెప్పిండు. నేనన్నా నేనేమన్నా ఆ సభలో కరెంట్ ఇచ్చి నీళ్ళిచ్చి పంట పండించుకొని పంట కొనే స్తోమత రైస్ మిల్లులకు లేదు ఇక్కడ ఇప్పటి రాదు కూడా. నేనేమన్నా ఐకేపీ సెంటర్లు ఉంటాయి, వడ్లు కొంటాయి, తప్ప అని నేను చెప్పింది కదా. ఐకేపీ సెంటర్లు ఉంటాయి, వడ్లు కొంటాయి. साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला बहुत जल्द अपनी सियासी जमात का ऐलान करेंगी। शर्मिला के बाएतमाद रफीक राजा गोपाल ने पार्टी के नाम, परचम और नजरिया से मुतालिक मालूमात दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवा दी है। सियासी हल्कों में बात की जा रही है कि शर्मिला अपने वालिद राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर नई पार्टी लॉन्च करेंगी। वो मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदा और सरकर्दा कायदीन के साथ इस सिलसिले में मशावरत भी कर रही है। कोविड-19 खवाइश से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के मकसद से साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बहादुरपुरे के इलाके में घोड़े पर सवार होकर पेट्रोलिंग की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की संगीनी को समझते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें। उनके हमरा इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार भिक्षम रेड्डी और इंस्पेक्टर पुलिस बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद वगैरह भी थे। स्टेशन किशनबाग में एसीपी साहब भिक्षम रेड्डी साहब और इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के साथ पेट्रोलिंग किए माउंटेड प्लेटून के मदद से। और हम सब जानते हैं कि 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाई गई और इस दफ़ा लॉकडाउन में थोड़ी तब्दीली आई। दोपहर 1 बजे तक खुला रखने की इजाज़त है और 2 बजे तक घर पहुंचने के लिए आदेश है। इसमें सब लोगों से गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है कि 1 घंटा जो विंडो मिल रहा है 1 बजे से 2 बजे तक, उसके बीच में घर पहुंचिए। और जो आज तक जो कॉपरेशन मिल रही है आवाम से, पुलिस को और हुकूमत को, इसी तरह की कॉपरेशन को बरकरार रहे। और हम सब देख रहे हैं कि केस, कोरोना पॉजिटिव केसेस दिन से दिन कम होता जा रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं महीने के अंत तक पूरी ये महामारी जो है कोरोना की ये कंट्रोल में आ जाएगी। थैंक यू। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने तासीस से तेलंगाना के मौके पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले उन पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद दी जिन्हें इस साल रियासती हुकूमत की तरफ से अवार्ड मिला है। उत्तम सेवा पदकम हासिल करने वालों में सीआईडी के एएसआई एनएसएस प्रकाश, ट्रैफिक पुलिस के एएसआई सैयद सादिक अहमद शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल हबीब अली, पेटला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के मोहम्मद जावेद हसन को भी सेवा पदकम अवार्ड मिला है। रियासती कांग्रेस ने तेलंगाना में तमाम शहरियों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन सरबराह करने का मुतालबा किया है। पार्टी के एक वफद ने, जिसकी क़यादत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने की, राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। वफद ने याददाश्त में बताया कि टीके अंदाजी की मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा करने की जरूरत है। रियासती हुकूमत ने जिस्मानी तौर पर माजूर खातून मिस देविका को हीरो हांडा एक्टिवा मंजूर की है। मलकपेट के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफीउद्दीन ने देविका की दरखास्त मौके में फलाह बहबूद जिस्मानी माजूरीन को देते हुए इसे मंजूर करवाने की ख्वाहिश की थी। नाम देवकी है, मेरे के व्हीकल आए कॉर्पोरेटेड सर एंड एमएलए सर मेरे को दिलाए, हेल्प करे बोथ। थैंक यू फॉर एमएलए सर एंड कॉर्पोरेटर। हम शंकर नगर में रहते मलकपेट।
क्या है आपको? मेरे मेरे हैंडीकैप है, वन लेग वन हैंड। मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा, चलने को बहुत मुश्किल होती थी जब, अब बहुत आसान हो जा रहा। हाँ, मैसेज देना, मगर ऐसे बेनिफिट्स यूटिलाइज कर लो। कौन सा तो भी आए तो पोस्ट तो भी कौन सा तो भी बेनिफिट्स आए तो उसको अप्लाई कर लेके उसको यूटिलाइज कर लो। हाँ, एमएलए से और कॉर्पोरेट से मिले तो बहुत थोड़ा मुश्किल आसान हो जाता है। और कौन सा भी अप्लाई करे तो भी हेल्प करते हैं कॉर्पोरेटर। रियासती कानून साज काउंसिल के प्रोटेम सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने अपने नए ओहदे का राजभवन में हलफ ले लिया। गवर्नर टी सुंदरराजन ने उन्हें हलफ दिलाया। बादशाह उन्होंने कानून साज काउंसिल में पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। रियासती कानून साज काउंसिल के मुतअद्दिद अरकान ने उन्हें नया ओहदा कबूल करने पर मुबारकबाद दी और उनकी गुलपोशी की। इनमें पल्ले राजेश्वर रेड्डी, अमीनुल हसन जाफरी और गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर वगैरह शामिल थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने बताया कि हुकूमत 10 लाख अफराद को कोविड-19 टीके देने का निशाना मुकर्रर किया है। नाचाराम के जॉनसन ग्रामर स्कूल में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और दूसरों के लिए मुनक्किदा टीके अंदाजी के खुसूसी कैंप का इफ्तिताह के बाद इन दोनों वज़रा ने कहा कि ऑटो ड्राइवरों के अलावा दूसरे लोग भी कोविड-19 से जल्द मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए उनका टीका लेना जरूरी है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शर्मन ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें कोविड-19 के मुतासरीन को कोविड वैक्सीन के टीके देने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी कायदीन के वफद ने जिला कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की और कहा कि दोनों शहरों में टीके अंदाजी की मुहिम के मजीद कैंप्स कायम किए जाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 130 करोड़ के मुजमला सिर्फ 30 करोड़ अफराद को अब तक टीके दिए गए हैं। रचाकुंडा पुलिस से वाबस्ता 2 मुलाजिमीन को उत्तम सेवा पदकम और 33 मुलाजिमीन को सेवा पदकम अवार्ड मिले हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इन तमाम मुलाजिमीन पुलिस को मुबारकबाद दी और कहा कि 5 साल में ये पहली मरतबा है कि रचाकुंडा पुलिस के इतने सारे अहदेदारों को अवार्ड मिले। इन मुलाजिमीन की एक तैनाती तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें एडिशनल कमिश्नर श्रीधर बाबू, DCP मलकाजगिरी, रक्षिता मूर्ति और दूसरे अहदेदार भी शरीक थे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ज्यादती का एक और वाकया इस मरतबा आसिफ नगर में पेश आया। बताया जाता है कि एक बाइक पर पेट्रोलिंग करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल ने मुखित नामी नौजवान को जो दूध लाने घर से निकला था लाठी फेंक कर मारा, जिससे उसके सर पर शदीद चोट आई। इत्तला मिलने पर ACP आसिफ नगर शिवा मूर्ति ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर जख्मी नौजवान मुखित से बातचीत की और यकीन दिलाया कि खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं महिम नगर में रहता हूँ। सच मैं दूध लाने निकला था, मेरे दोस्त के साथ दूध लाने निकला था। एक पुलिस गली में से पुलिस वाले है, पटेल डेयरी फार्म गली में से आके एक जना मारा। मेरे को ऐसा चक्कर आ गया एकदम गाड़ी पे से। मैं गाड़ी रोक के उन लोग के पीछे गया तो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के पूरे पुलिस वाले चले गए। नाजायज जुल्म कर रहे, ज़बरदस्ती का मार रहे क्या। तो भी अब दूध लाने भी नहीं निकलेंगे क्या घर में से। लट से मार दिए बैठती दबा के। मैं कुछ एकदम चक्कर आ गई। फिर गलती थी तो रुकना था, मेरे मास्क था सब था, भाग गया मैं जैसा पीछे आते की एकदम मेरे को चक्कर आ गया। मैं गाड़ी रोक के उन लोग के पीछे गया भागने। उल्ला जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के चले गए। कहाँ पे किधर मारे, कहाँ पे मारे जी? किधर मारे? इधर आँख करने मारे। एरिया मुरादनगर। कौन से एरिया? मुरादनगर। आपका नाम क्या? मोहम्मद मुफीम। मुरादनगर में रहता है? महिम नगर में रहता हूँ। चलो बच्चों। मीरपेट पुलिस ने मकामी शादी खाने में खून की हत्या का एक कैंप मुनक़िद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह ने पुलिस मुलाजिमीन के जज्बे की सिताइश की। वनस्थलीपुरम के ACP ने इस कैंप का मुआयना किया। सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी और दूसरे पुलिस अहदेदारों ने इस कैंप के इनेकाद में सरगर्म हिस्सा अदा किया। बंजारा हिल रोड नंबर 2 पर एक एम्बुलेंस के खड़ी लारी को टक्कर देने के नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर नरसिम्हा शदीद तौर पर जख्मी होगा। उसे करीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। बंजारा हिल की पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि एम्बुलेंस पंजागुट्टे से बंजारा हिल की सिम जा रही थी। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हनुमान जयंती के मौके पर श्री प्रसन्ना अंजैया स्वामी मंदिर में हाजिरी दी और तलाई जेवरात का नजराना पेश किया। रियासती वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि काबीना से बरतरफ
वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्ज के लिए पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र बदउन्नानियों में मुलविस थे। चुनाचे चीफ मिनिस्टर को उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। 5 ఏళ్లుగా నిజంగా మీకు ఆత్మగౌరవం ఉంటే మీకు జరిగిన అన్యాయం ఏంటో చెప్పుకొని మరి ఆ రోజే ఏదైనా పార్టీకి చెప్తే బాగుండేది. కానీ గడిచిన ఉద్యమ కాలం నుంచి వారు వచ్చినప్పటి నుంచి వారి పనిని గుర్తించి వారికి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్ష పదవి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి, ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ప్రతిపక్ష అంటే ఫ్లోర్ లీడర్గా వారికి అవకాశం ఇచ్చి తెలంగాణ సాధించుకున్నాక కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం క్యాబినెట్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా, ఈరోజు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా వారికి ఎనలేని గౌరవాన్ని, అపారమైన గుర్తింపును వారు ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి గొప్ప అవకాశం కల్పించింది కేసీఆర్ గారు. అవన్నీ మర్చిపోయి మరి ఈరోజు ఆత్మగౌరవం పేరుతోనే పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆత్మగౌరవంతో కాదు, వారు ఈరోజు ఆత్మరక్షణలో పడి ఈ పార్టీని వీడుతున్నట్టుగా భావించవలసి వస్తుంది. ఒక పేదవాళ్లకు గొప్ప అవకాశం ఇస్తే తన వచ్చిన ప్రాంతానికి, తను వచ్చిన కులానికి, తను వచ్చిన వ్యవస్థను బాగు చేయటానికి తనకున్న అధికారాన్ని ఉపయోగించి, తనకున్న వనరులను ఉపయోగించి, తనకున్న గౌరవం గుర్తింపును ఉపయోగించి ఆ ప్రాంతానికి, ఆ కులానికి, ఆ ప్రజలకు మేలు చేయాలి. నాయకుడి లక్షణం అంటే అది. కానీ నేను ఒక వెనుకబడిన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని అని చెప్పుకుంటూ పేదవాళ్ల భూములను వారే స్వయంగా ఒప్పుకున్నారు. ఈరోజు ఒక సామాన్యుడు లేఖ ఇస్తే నేను మంత్రిని చూడకుండా కేసీఆర్ గారు నన్ను వివరణ అడగకుండా నన్ను బర్తరఫ్ చేశారని కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడల్లా మాకు హైకమాండ్ ఢిల్లీలో లేదు, హైదరాబాద్లో లేదు, తెలంగాణ ప్రజలే టీఆర్ఎస్ పార్టీ హైకమాండ్ అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు చెప్తారు. కాబట్టి సామాన్యుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఇది వాస్తవమా కాదా అని తెలుసుకున్నాక మాత్రమే బర్తరఫ్ చేసిందనే విషయాన్ని వారు గుర్తించాలని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. दबीरपुरे के इलाके में वाक़ मस्जिद रहमानिया में आज जुमे की नमाज नहीं हो सकी। मस्जिद कमेटी के सदर ने मस्जिद को जबरदस्ती ताला डाल दिया और लोगों से कहा कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। चुनाचे एहतजाजन कई लोगों ने सड़क पर ही नमाज अदा की। ये मस्जिद के जो जिम्मेदार है लॉक डाल लेके चले गए भाई। सुने आप, ना अज़ां होने दिए, ना नमाज होने दिए। अब वो तो ताक़यामत तक रुकने वाली चीज़ नहीं है। सुने आप, अब थोड़ी हमको मुश्किल पेश आई होंगी, लेकिन उसके वास्ते हमारी जान भी गई तो कोई हमारे को वो मसला नहीं है। अब देखिए आप, यहाँ पर मस्जिद है, सब जिम्मेदारान है, सब अहले खैर हज़रात चंदा डाल के सब अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए अपने मेहनत व मशक्क़त के पैसे दे के बनाए, तो उन्हें जिम्मेदारी लेके क्या कर रहे हैं। देखिए आप लॉक डले हुआ है, रोड पे घरों से हम जानी माता बेडशीटा लेके आके यहाँ पर नमाज पढ़ लेंगे। यही होता है क्या तरीका? सुनिए, हम कुछ बोलने का ही से हमारे ऊपर जाके केस डाल रहे हैं। केस डालो, क्या होता है? वो लोग भी हक देख के किसका फैसला करते? आप कितने भी छोटे कंप्लेना देने दो। सुनिए आप, ये कैमरा कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा कैमरा अल्लाह का है। वहां तो पकड़ है से तुम्हारा, यहाँ कितना भी झूठ बोल लो तुम। कितने खुद बोल के समझेंगे, कितने खुद बोल के करेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात हो जा रही है। बड़े है, उम्र में शुभ है, आप क्या करना, बच्चों के साथ कैसा रवैया करना। महल्ले के बच्चे महल्ले में तो कहाँ जाके पढ़ेंगे। आप सईदाबाद से आके नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कौन सी एरिया की मस्जिद है? ये हाफिन पैलेस के सामने कमेटी हाल है, आता रोशनुद्दौला, वहाँ की मस्जिद है। ये मस्जिद रहमानिया अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। समझ रहे हैं आप, अल्लाह का घर है। सुनिए आप, अल्लाह के घर में नागरम कीसरा में एक ही खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली। महलूकिन की शिनाख्त 35 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर भिक्षापति और उसकी 32 साल बीवी उषा के अलावा 2 बच्चों हर्षिनी और यशवंत की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि भिक्षापति पर एक लड़की के साथ गलत बर्ताव करने का इल्जाम था। चुनाचे वो बदनामी के डर से जुमेरात की रात अपने घर में इकदाम कर बैठा। कीसरा पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
शमशाबाद में हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शराब पर ट्रैफिक के एक हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल गुंडूराव की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक मारुति कार ने इस कांस्टेबल को टक्कर दे दी, जबकि वो एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहा था। गुंडूराव विकाराबाद के मौजे धारूर का रहने वाला था और वो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर राइटर की हैसियत से काम करता था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हिंदुस्तान में जुमे को कोरोना वायरस के 1,32,366 केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2,713 अमवात भी हुई हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 15,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 3 बड़े शहरों में कोविड-19 के केसेस में कमी देखी गई है। दिल्ली में 487, बम्बई में 961 और कलकत्ता में 974 केसेस रिपोर्ट हुए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.